So I hope you know what is chromosomes, what is gene. Okay. Now we'll start with the inheritance pattern. Okay. So inheritance patterns trace the transmission of genetically encoded traits, conditions or disease from parents to offspring. ठीक है, इनहेरिटेंस पैटर्न जो होता है that trace the transmission of genetically encoded traits, conditions or disease from parents to offspring. Is used for accurate diagnosis of genetic disorder, to calculate the risk of disease appearing in offspring, to suggest the way to prevent the genetic disorder. Right? So inheritance pattern traces the disease from parents to offspring. The traits which are responsible for disease from parents to offspring. Why? Then it is used for accurate diagnosis of genetic disorder, calculating the risk of disease appearing in offspring, and suggest the way to prevent the genetic disorder. Now, the inheritance follows following patterns: monogenic, that is single gene or Mendelian inheritance. ठीक है, single gene or Mendelian inheritance. Polygenic, multiple genes are involved. It is called multifactorial inheritance and mitochondria. ठीक है, तो inheritance follows three patterns: monogenic, polygenic and mitochondria. Monogenic, single gene is involved. It is called Mendelian inheritance, that follows the Mendelian inheritance. Then polygenic, multiple genes are involved. It is multifactorial inheritance. And then mitochondria. Okay. So for the investigation of genetic disorder, it is important to record family history of relatives in relation to genetic disorder. Okay. The information about the health of whole family is recorded in the form of pedigree chart. The pedigree chart is a diagram which shows the family relationship and mode of inheritance of a particular disease. Okay. So, to investigate a genetic disorder, family history recorded. The information about the health of whole family history, this information then recorded in the form of pedigree chart. And what is pedigree chart? It is a chart, it is a diagram which shows the family relationship and mode of inheritance of a particular disease. Pedigree chart बनाने के लिए some symbols are used. The symbols are: first, the square represents normal male. The circle represent normal female. The shaded, the square, dark color, and circle, it represent affected male and female respectively. Then this is the sign for consanguinity. This sign is for consanguinity. मतलब relation, the marriage between the relation, marriage between the first, for example, marriage between the first cousins. Then this half shaded square and circle, it represent the heterozygotes. They represent heterozygotes for autosomal recessive. Autosomal recessive के लिए ये symbol यूज करते हैं. These persons are carriers. ठीक है. Now pedigree chart ऐसे बनाते हैं. This square is for male, normal male. This one is normal female. Then their offsprings, 2 males, 1 female. All are normal. Then Mendel states that the offspring bears one gene from each parent, so that each offspring has 2 genes for each trait. ठीक है. Offspring bears one gene from each parent, one from mother, one from father, so that each offspring has 2 genes for each trait. For example, for color.
If both the genes bear the same information, then the offspring is called homozygous. ठीक है, दोनों जो दोनों होमोलॉगस जीन्स होते हैं उसमें सेम इंफॉर्मेशन है, सो दैट ऑफस्प्रिंग दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड होमोजाइगस. Different information, if the genes bears the different information, then that offspring is called heterozygous for that trait. ठीक है, उसी जीन्स पे अगर अलग अलग इंफॉर्मेशन है तो that condition is heterozygous. Genetic disorders results from inheritance of one copy of mutated gene. ठीक है, if single copy of mutated gene is enough for the manifestation of disorder, then this type of disorder is dominant disorder. If for manifestation two copies of mutated genes required, then that condition is recessive disorder. ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इसमें भी पढ़ा होगा. हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, डोमिनेंट डिसऑर्डर, रेसेसिव डिसऑर्डर. क्रोमोसोम पेयर होती है, एक पेयर में क्रोमोसोम पर एक लोकेशन पे जो जीन्स होता है उसकी इंफॉर्मेशन होती है. अगर करस्पॉन्डिंग दोनों जीन्स पे जो इंफॉर्मेशन होगी वो सेम होगी तो दैट कंडीशन इज होमोजाइगस. अगर उसी लोकेशन में उस जीन पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी दैट कंडीशन इज हेटेरोजाइगस. ठीक है, अब ये पेयर में एक जीन पे जो एक पेयर पे एक जीन्स म्यूटेटेड है, एक नॉर्मल है. इफ दैट म्यूटेटेड जीन इज सफिशिएंट टू मैनिफेस्ट अ कंडीशन, एनी डिसऑर्डर, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर. अगर सिर्फ एक जीन से डिसऑर्डर मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है, दो जीन्स चाहिए होते हैं म्यूटेटेड, दो कॉपी म्यूटेटेड अगर जीन की चाहिए होगी तो दैट कंडीशन इज रेसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, ऐसे जो टू कॉपीज ऑफ म्यूटेटेड जीन्स आर रिक्वायर्ड, देन दिस डिसऑर्डर इज रेसेसिव डिसऑर्डर. और इस कंडीशन में अगर एक म्यूटेटेड है और एक नॉर्मल अगर है पर्सन में जीन्स, तो दैट इंडिविजुअल इज कैरियर. ठीक है, वो डिसीज कैरी करे, मैनिफेस्ट नहीं करे, वो कैरी करेगा नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, सो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस ड्यू टू जीन प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स. हमारे बॉडी में ऑटोसोम्स होते हैं, 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, X and Y. ठीक है, सो ऑटोसोम्स के जीन्स पे अगर म्यूटेटेड जीन है और उसके वजह से अगर डिसऑर्डर हो रहा है तो दैट कंडीशन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव. Sex link inheritance by gene present on sex chromosome. X और Y क्रोमोसोम पर अगर डिफेक्टिव जीन है तो दैट रिजल्ट्स इन X लिंक डोमिनेंट, Y लिंक डोमिनेंट, X लिंक रेसेसिव और Y लिंक रेसेसिव नहीं होता, रेयर होता है. X लिंक डोमिनेंट और X लिंक रेसेसिव, Y लिंक डोमिनेंट. इस टाइप से ये डिसऑर्डर मैनिफेस्ट होते हैं. ठीक है, तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, अगर ऑटोसोम्स पे म्यूटेटेड जीन्स है तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस. अगर सेक्स क्रोमोसोम X और Y पे म्यूटेटेड जीन है देन सेक्स लिंक इनहेरिटेंस. राइट. देन हम पहले पढ़ेंगे मोनोजेनिक और मेंडेलियंस इनहेरिटेंस. मोनोजेनिक और मेंडेलियंस इनहेरिटेंस that follows Mendelian's law. It can be autosomal or it can be sex linked inheritance. Autosomal dominant gene expressed clinically even in single dose. ठीक है, अभी हमने देखा डोमिनेंट मतलब सिंगल डोज में जीन मैनिफेस्ट हो रहा है. हेटेरोजाइगस स्टेट में डिसीज मैनिफेस्ट हो रहा है, तो दैट इज. और अगर ये डिफेक्टिव जीन ऑटोसोम्स पे होगा तो दैट कंडीशन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. इफ द डिसीज इज मैनिफेस्टेड, ट्रेट इज मैनिफेस्टेड ओनली व्हेन द जीन इज इन डबल डोज. दो कॉपी अगर म्यूटेटेड जीन की है तो दैट कंडीशन इज रेसेसिव. दैट स्टेट इज होमोजाइगस. और अगर ये दोनों भी म्यूटेटेड जीन्स ऑटोसोम्स पे है तो दैट कंडीशन इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर.
ठीक। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस: बाल्डनेस, कंजेनाइटल टोसिस, कंजेनाइटल कैटरैक्ट, अकॉन्ड्रोप्लेजिया, हंटिंगटन्स डिसीज। These are the examples of autosomal dominant. Common baldness, congenital ptosis, congenital cataract, achondroplasia, Huntington's disease. Then there are certain characteristics of autosomal dominant inheritance. Here, male and female both are equally affected. ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड. देन ट्रांसमिशन अकर्स बिटवीन ऑल सेक्सेस, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल. ठीक है, यहाँ पे देखो ये पीरिग्री चार्ट है. दिस वन इज अफेक्टेड, दिस इज मेल है, नॉर्मल फीमेल है. इनके जो ऑफस्प्रिंग्स है इसमें दिस टू आर नॉर्मल एंड दिस टू आर डिसीज. ठीक है, तो 50-50 चांसेस है. 4 ऑफस्प्रिंग से उसमें से 2 डिसीज है, 2 नॉर्मल है. तो 50-50 चांसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन. देन ट्रांसमिशन अकर्स बिटवीन मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल. ठीक है, एंड बिटवीन फीमेल टू फीमेल ऑल्सो एंड फीमेल टू मेल ऑल्सो. ठीक है. Then it is seen in every generation without skipping. See, it is seen in every generation without skipping. क्योंकि जो disease है, जो mutated gene है, that is dominant. The single dose is sufficient to manifest a disease. तो ये सारे generation में दिखेगा. ठीक है. Then again 50-50% chances of normal and affected children. Then affected person always has an affected parent. यूजुअली क्या होता है, अफेक्टेड पर्सन को जो डिसीज ट्रांसमिट हुआ है वो पेरेंट से ही ट्रांसमिट होता है. इफ पेरेंट इज नॉट अफेक्टेड देन ट्रेट हैज अपीयर्ड फर्स्ट टाइम. अगर पेरेंट में नहीं है और पहली बार अगर ये डिसीज दिख रहा है देन इट मे अकर ड्यूरिंग द गमेटोजेनेसिस. If parent is not affected and trait has appeared first time, then new autosomal dominant mutation has occurred, and this new mutation occur at the time of gametogenesis. जब स्पर्म्स या ओवम फॉर्म होता है, गमेट्स जब फॉर्म होते हैं तो उस टाइम में ये नया म्यूटेशन हो सकता है. ठीक है. नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स डू नॉट ट्रांसमिट द डिसऑर्डर टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है. Then example is Huntington's chorea. It is seen 1 in 15,000 people. Started around 40 years. और इसमें क्या होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है लाइक फेशियल ग्रिमेसिंग, ट्विचिंग ऑफ फेस और लिम्ब मसल्स. ठीक है. डिसऑर्डर, cause of the disorder is progressive cell death in central nervous system. और यहाँ पे mutated gene कहाँ होता है, located on the short arm of chromosome 4. ठीक है, short arm of chromosome 4 में जो जीन होता है वहाँ पे म्यूटेशन होगा. उसकी वजह से अराउंड 40 इयर्स पर्सन में सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है लाइक फेशियल ग्रिमेसिंग, ट्विचिंग ऑफ मसल्स, फेशियल एंड लिम्ब मसल्स. ठीक है. दिस इज सीन इन हंटिंगटन्स कोरिया. अकेंड्रोप्लेजिया में क्या होता है, इट इज सीन इन 1 in 10,000 people. पर्सन इज डॉर्फ, नॉर्मल इंटेलिजेंस, रिप्रोड्यूस नॉर्मली, and it occurs due to the mutated gene present on the short arm of chromosome 4. अब इसमें क्या होता है, म्यूटेशन जो जीन का होता है that is responsible for fibroblast growth factor. फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें म्यूटेशन होगा एंड इट रिजल्ट्स इन डिफेक्टिव कार्टिलेज ग्रोथ.
उसकी वजह से कार्टिलेज ग्रोथ नहीं हो पाती है एंड पर्सन इज गॉन। ठीक है, ट्विन बॉयज है, एक नॉर्मल है, एक एकेंड्रोप्लेसिक है। So I think this condition is quite common, ये दिखता है हमें। Okay, so this one is autosomal dominant disorder. Then autosomal recessive. Autosomal recessive के examples है albinism, schizophrenia, sickle cell anemia, microphthalmia, cystic fibrosis। ठीक है, तो सिजोफ्रेनी डिसऑर्डर इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया जो मेंटल कंडीशन होती है दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। सो अदर एग्जांपल्स आर एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, माइक्रोऑफ्थैल्मिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है डिसऑर्डर के? पर्सन हैविंग सिंगल म्यूटेटेड जीन डज नॉट एक्सप्रेस द डिसऑर्डर एंड इज हेल्दी। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स आर कैरियर्स एंड दिस ट्रेट इज सीन इन सेम जनरेशन इन सिबलिंग्स एंड नॉट सीन इन पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या होते हैं? कैरियर होते हैं। देन ऑफस्प्रिंग्स में ये दिखेगा। ठीक है, अगर सिंगल म्यूटेटेड जीन है दैट कंडीशन इज हेटेरोजाइगस स्टेट, दैट स्टेट डज नॉट एक्सप्रेस द डिसऑर्डर एंड द पर्सन इज हेल्दी बट कैरियर। अब ये जो पर्सन होगा कैरियर है, कैरी करेगा जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन और ऑफस्प्रिंग्स में ये डिसऑर्डर मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, here again male and females equally affected. If parents are related, first cousins है, then the chances of manifesting the autosomal recessive increases many-fold as compared to the parents who are unrelated. ठीक है, तो इसलिए रिलेशन में मैरिज अवॉइड करते हैं। जब काउंसलिंग होती है तब यही बताया जाता है कि रिलेशंस में मैरिज अवॉइड करना है। ठीक है, सो इफ पेरेंट्स आर रिलेटेड, दोनों कैरियर है, मदर और फादर दोनों कैरियर है, तो सीयर दोनों अगर कैरियर है तो इट विल मैनिफेस्ट इन चिल्ड्रन। राइट। देन सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, अब यहाँ पे जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेटेड जीन्स जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे होंगे या वाई क्रोमोसोम पे होंगे। ठीक है, एक्स लिंक एंड सेक्स लिंक रेसेसिव एंड डोमिनेंट। तो कॉमन एग्जांपल ऑफ वाई लिंक इनहेरिटेंस इज हेयरी पिन्ना। ये भी कॉमन है, ये भी दिखता है। अब ये किस में दिखेगा? वाई लिंक किस में दिखेगा? किसमें दिखेगा? एस्मा में तो ठीक है, किसमें दिखेगा? वाई लिंक जो होता है वो किसमें दिखेगा? वेरी गुड, मेल्स में दिखेगा। वाई मेल में ट्रांसमिट होता है, तो ऑल सन्स ऑफ अफेक्टेड मेल्स आर अफेक्टेड। जितने भी अगर मेल चाइल्ड होता है तो सारे मेल चाइल्ड्स में अफेक्ट होगी, क्योंकि वाई जाएगा सब में एंड वाई इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव वाई जाएगा सब में, तो ऑल सन्स आर अफेक्टेड। हियर अगेन ओनली मेल्स आर अफेक्टेड एंड फीमेल नेवर ट्रांसमिट द ट्रेट, दैट इज एक्स लिंक डिसऑर्डर। देन वाई लिंक again, some genes on X chromosome are similar to genes present on autosomes. These genes have functions other than the determination of sex, like color perception or gene for blood clotting. ठीक है, कलर परसेप्शन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो जीन्स है, अगर ये डिफेक्टिव है तो कलर परसेप्शन के लिए कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग है तो हीमोफीलिया हो सकता है। ठीक है, सो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, डायबिटीज, मेलाइटिस, होमो, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी,
ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कैरेक्टरिस्टिक, फीमेल्स हैव 2X क्रोमोसोम्स while males have 1. ठीक है। As recessive trait only manifest when genes are in double dose. Hence recessive trait are rare in females. ठीक है। मेल में एक ही X क्रोमोसोम होगा, तो वो अगर एक X क्रोमोसोम होता है, दूसरा Y क्रोमोसोम होता है, X पे डिफेक्टिव जीन है, तो दैट कंडीशन इज मैनिफेस्ट इन मेल्स। अगर मेल्स में पेरेंट्स से डिफेक्टिव X आता है तो दैट कंडीशन विल मैनिफेस्ट इन मेल्स। बट फीमेल में एक आएगा नॉर्मल, एक आएगा डिसीज, तो दैट फीमेल इज कैरियर। ठीक है। वो फीमेल क्या होगी? कैरियर होगी, वो डिसीज मैनिफेस्ट नहीं करेगी। Hence, the recessive trait are rare in females. Heterozygous female will not manifest the trait, but will transmit the mutant gene to next generation. Hence, heterozygous female is carrier. ठीक है। मेल्स में क्या होता है? एक X होगा, एक Y होगा। अगर वो X जो है वो डिफेक्टिव है तो मेल्स में डिसीज मैनिफेस्ट होगा। अगर फीमेल में एक X नॉर्मल है, दूसरा X डिफेक्टिव है, तो वो फीमेल क्या होगी? कैरियर। अगर दोनों डिफेक्टिव X आते हैं तो उसमें फिर फीमेल क्या होगी? डिसीज। राइट। Males have only one X chromosome, hence the mutant gene will manifest the disorder, as they do not have normal gene to compensate for the mutant gene. ठीक है। Males with mutant gene on his X chromosome is called hemizygous. Affected male will transmit mutant gene to all his daughters, who will become carriers. क्योंकि मदर से नॉर्मल अगर जीन्स आता है तो वो सारे जो डॉटर्स होगी वो क्या होगी? कैरियर्स। यहाँ देखते हैं, दिस मेल इज नॉर्मल, दिस फीमेल इज कैरियर, दिस फीमेल इज कैरियर। एक डिफेक्टिव है, एक नॉर्मल है। अब दूसरे जनरेशन में इस मेल में मदर से डिफेक्टिव जीन आया है और फादर से Y आया है, तो दिस इज मैनिफेस्टिंग हियर। इस मेल में सॉरी, अब ये फीमेल, इस फीमेल में मदर से डिफेक्टिव आया है, फादर से नॉर्मल X आया है, तो दिस वन इज कैरियर। अगेन दिस मेल, इसमें मदर से नॉर्मल X आया है, फादर से नॉर्मल X आया है, Y आया है, दिस वन इज नॉर्मल। दिस फीमेल मदर से नॉर्मल X आया है, फादर से नॉर्मल X आया है, तो ये फीमेल क्या होगी? ठीक है ना। अब ये जो कैरियर फीमेल थी, ये और दिस फादर इज नॉर्मल XY। अब इनमें से जो इनके ऑफस्प्रिंग्स है, इसमें दिस अफेक्टेड मेल, इसमें क्या ट्रांसमिट हुआ है? फादर का Y और मदर का डिफेक्टिव X, तो इसमें मैनिफेस्ट हुआ डिसीज। दिस फीमेल, ये जो डॉटर है, इसमें मदर का डिफेक्टिव और फादर का नॉर्मल X ट्रांसमिट हुआ है, दिस फीमेल इज कैरियर। ठीक है। तो X लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस, X लिंक रेसेसिव ने देखा। एक बार फिर से देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फीमेल्स हैव 2X क्रोमोसोम, मेल्स हैव 1। तो अगर मेल में एक डिफेक्टिव जीन आता है तो मेल इज अफेक्टेड। फीमेल में अगर एक डिफेक्टिव जीन आता है तो फीमेल इज कैरियर, और दोनों डिफेक्टिव आएंगे तभी फीमेल विल बी अफेक्टेड। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन इज रेयर इन फीमेल। X-linked dominant inheritance. X-linked dominant में presence of mutated gene on X chromosome. ठीक है, dominant है तो जो mutated gene single dose is sufficient to manifest the disease.
ठीक है, इट इज एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस फीमेल एज वेल एज मेल्स. अफेक्टेड मेल ट्रांसमिट टू ऑल हिज डॉटर बट नॉट हिज सन. मेल से जो ट्रांसमिट होगा सन को वो वाई होगा, एक्स नहीं होगा. एक्स का ट्रांसमिट होगा डॉटर को. तो अगर मेल अफेक्टेड है तो जितनी भी डॉटर्स होगी वो सारी क्या होगी, अफेक्टेड होगी. एग्जाम्पल्स: विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स एंड हाइपोफॉस्फेटेमिया. एग्जाम्पल ऑफ X-linked dominant inheritance is vitamin D resistant rickets and hypophosphatemia. इसका चार्ट देखो. इसमें नॉर्मल मेल, दिस इज फीमेल. इनके जो ऑफस्प्रिंग्स है यहाँ इस अफेक्टेड मेल में मदर से डिफेक्टिव जीन आया है, फादर से वाई आया है. सो दिस वन इज अफेक्टेड. देन इस फीमेल में मदर से नॉर्मल एक्स आया है और फादर से नॉर्मल एक्स आया है. सो दिस वन इज नॉर्मल. सिमिलरली हियर अगेन नॉर्मल एक्स एंड वाई. हियर डिफेक्टिव एक्स और फादर से नॉर्मल एक्स. दिस वन इज अफेक्टेड. So difference between autosomal dominant and X-linked dominant disorder. दोनों में क्या होता है डिफरेंस? X-linked जो होगा डिफेक्टिव जीन कहाँ होता है, X क्रोमोसोम. ऑटोसोमल डोमिनेंस में जो डिफेक्टिव जीन होगा वो ऑटोसोम्स पे होगा. ठीक है. X-linked dominant disorder of an affected male is transmitted to all his daughters but none of his son. एक्स जो ट्रांसमिट होगा डॉटर्स में होगा, सन में नहीं होगा. तो X-linked dominant disorder होगा अफेक्टेड मेल के डॉटर्स में दिखेगा, सन में मेल चाइल्ड में नहीं दिखेगा. ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्या होता है? इट इज ट्रांसमिशन सीन बिटवीन ऑल सेक्सेस, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल. ठीक है. ऑटोसोमल डोमिनेंट इसमें एक्स और वाई टाइप से कुछ नहीं होता है. ऑटोसोम्स पे जीन इफेक्टिव है तो वो सारे सेक्स के बीच में ट्रांसमिट होगा. पर X-linked dominant डिसऑर्डर होता है, इसमें X-linked पे डिफेक्टिव जीन है तो सिर्फ डॉटर्स में दिखेगा अफेक्ट मेल के, सन में मेल चाइल्ड में नहीं दिखेगा. ठीक. देन पॉलीजेनिक एंड मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस. वो सिंगल जीन था, ये पॉलीजेनिक. इसमें अब बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं टू मैनिफेस्ट दिस सिंगल डिसीज. So many common traits do not follow the simple Mendelian inheritance. For example, intelligence, height, weight, blood pressure, hair color, eye color. They have complex genetic basis. A disorder or trait which is determined by additive effect of many genes situated at different loci on chromosomes is polygenic inheritance. ठीक है. Disorder or trait which is determined by additive effect of many genes situated at different loci on chromosome is polygenic inheritance. ठीक है. सिंगल जीन नहीं होता है, डिफरेंट जीन्स होंगे जो क्रोमोसोम्स के डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट होंगे, वो सारे मिलके उनका सारा एडिटिव इफेक्ट होके जब एक डिसऑर्डर और ट्रेट मैनिफेस्ट होता है, सो दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. एग्जांपल्स: न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, पाइलोरिक स्टेनोसिस, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट एंड हार्ट डिफेक्ट्स. Polygenic inheritance. This one is congenital. Neural tube defect, pyloric stenosis, cleft lip, cleft palate, heart defect, ये congenital conditions है. Adult onset diseases, जो polygenic adult onset diseases वो होते हैं diabetes mellitus, epilepsy, hypertension, इस्चेमिक हार्ट डिसीज एंड सिजोफ्रेनिया. तो सिजोफ्रेनिया ये जेनेटिक भी है, एडल्ट ऑनसेट में भी दिखेगा और ऑटोसोमल रिसेसिव में दिखेगा. डायबिटीज मेलिटस आल्सो.
ठीक है. मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस. Some physical traits, they are not determined only by genes, but by interaction of genes and environmental factors. For example इसमें आ जाएगा diet in case of weight, sunlight in case of skin color, and influences the action of genes. ठीक है. Some physical traits, they are not determined only by genes, but by interaction of genes and environmental factors. Examples here are diet in case of weight gain के लिए diet, then skin color के लिए sunlight. This environmental factors influences the action of genes. ठीक है. So this is about the inheritance, mode of inheritance. इसके बाद देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ठीक है. क्या क्या देखा हमने? सिंगल जीन डिसऑर्डर देखा, पॉलीजेनिक. सिंगल जीन में सिंगल म्यूटेटेड जीन होता है, तो इट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस. अब इसमें होता है ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक. ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव. सेक्स लिंक में एक्स लिंक, वाई लिंक, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रेसेसिव. ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होगा? सिंगल म्यूटेटेड जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डर. रेसेसिव में क्या होता है? 2 कॉपीज ऑफ म्यूटेटेड जीन्स रिक्वायर्ड टू मैनिफेस्ट द डिसऑर्डर. ठीक है. ऑटोसोमल रेसेसिव में फीमेल मोस्टली कैरियर्स. ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होगा? इक्वल होता है. 50-50% मेल एंड फीमेल अफेक्टेड होने का चांसेस 50-50% होता है. देन सिमिलरली एक्स लिंक डिसऑर्डर, एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होगा? एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होगा? सारी फीमेल्स क्या होगी? क्या होती है? अफेक्टेड होती है. अगर अफेक्टेड मेल है तो, पर अफेक्टेड मेल विल नॉट ट्रांसमिट द डिसऑर्डर टू मेल चाइल्ड. ठीक है. देन वाई लिंक डिसऑर्डर का हमने एग्जांपल देखा था. हेयरी पिन्ना, ये दिखेगा सिर्फ मेल चाइल्ड. ठीक है. देन पॉलीजेनिक में सिंगल जीन नहीं होगा, मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व टू मैनिफेस्ट द डिसऑर्डर. ठीक है. दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस. देन some physical traits, they are determined by the interaction of genes and environmental factors. Like weight gain अगर होता है, skin color जो होता है, इसके लिए diet is responsible for weight gain, then sunlight in case of skin color. ऐसे भी और एग्जाम्पल हो गए which influences the action of genes. ठीक है. दिस इज अबाउट द इनहेरिटेंस पैटर्न. अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. ब्रेक चाहिए आप लोगों को. ठीक है. 5 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर.
देखो अकॉर्डिंग टू जो न्यू करिकुलम है उसमें आपको जो थ्योरी पेपर है उसमें एटकॉम भी एटकॉम पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है एटकॉम के जो टॉपिक्स हुए आपके जैसे कैडावर एज अ फर्स्ट टीचर, देन व्हाट इज मेंट टू बी डॉक्टर, व्हाट इज पेशेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सारे जो आपके टॉपिक्स हुए हैं इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। एक शॉर्ट नोट का 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है तो आपके जो ये है आपका जो टाइम टेबल दिया हुआ है उसमें कितने टॉपिक्स है ऐसे एटकॉम वाले, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री, इसका सारा एक आप ये करो लिस्ट बनाओ। ठीक है अब और कोई भी एक में से कोई एक लिस्ट भेजो। राइट मेरे पास है लिस्ट, वो देखते हैं कि आपको बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी में से टॉपिक मिले हैं, एनाटॉमी लिस्ट है मेरे पास। तो आपको सारा 7-8 टॉपिक हो गए, सारे प्रिपेयर करने हैं। अभी जो सेकेंडल असेसमेंट का जो थ्योरी एग्जाम लेंगे उसमें भी एक क्वेश्चन डालेंगे 4 मार्क्स के लिए, 4 या 5 मार्क्स के लिए। तो वो भी आप प्रिपेयर करेंगे। वो जो लिस्ट बनाओगे आप उसको एज अ जो 7 असाइनमेंट्स दिए हैं तो 8 असाइनमेंट वो लिस्ट के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो। और जो हमने सेकंड लॉट जो दिया था असाइनमेंट का फ्रॉम 5th to 7th 4 तो असाइनमेंट आप कर चुके हो, 5th 6th and 7th जो लिस्ट दी है उसे भी आप सबमिशन शुरू कर दो। आफ्टर 15th आपका शायद एग्जाम होगा थ्योरी एग्जाम, तो 10 तारीख तक कर दो एकदम एग्जाम के। फिर एग्जाम के बाद आपको थोड़ा पढ़ने के लिए वक्त मिल जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके आप असाइनमेंट कंप्लीट करके दे दो। अटेंडेंस कम आ रही है या जिनका इंटरनल असेसमेंट परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा सा अगर लगेगा तो थोड़ा सा हम कंसीडर कर लेंगे। थोड़ा बहुत 2-3 मार्क्स। तो जो 8 असाइनमेंट होगा आपका वो एटकॉम वाली जो लिस्ट है 5-6 टॉपिक्स है मेरे ख्याल से, वो आप बना दो लिस्ट और उसी का असाइनमेंट आप एज 8 असाइनमेंट आप सबमिट कर दो। ठीक है चलो चल वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। Chromosomal disorders due to the chromosome number or disorder due to the chromosome structure.
So first, today we'll study the disorder due to chromosome number. So chromosomal abnormalities responsible for significant mortality and morbidity. More than 50% spontaneous abortions occur due to chromosomal abnormalities. Up to 1% congenital and childhood disabilities occur and malignancies. क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज की वजह से 50% स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं, 1% कंजेनाइटल चाइल्डहुड डिसेबिलिटीज होती है और मैलिग्नेंसीज भी होती है जिनमें क्रोमोसोम की एब्नॉर्मलिटी होती है। उन लोगों में मैलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं हमारे बॉडी में, ऑटोसोम्स कितने होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। नॉर्मल क्रोमोसोम कितने होंगे 46 20 पेयर्स। ठीक, तो इफ इंडिविजुअल में हैव मोर क्रोमोसोम्स मोर देन 46 47 48 49 इस टाइप से होंगे तो दैट इज क्रोमोसोमल abnormality in the number of chromosome. If less than 46 45 है तो that is again a abnormality. 22 pair autosomes and 6 chromosomes. So a cell with a missing chromosome would have 45. So that condition is monosome. अगर more than लेस देन 46 है 45 है तो दैट कंडीशन इज मोनोसोम। व्हेन अ सेल हैज सिंगल इफ अ सेल हैज 3 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 2 डिप्लॉयड नंबर में होते हैं, और अगर डिप्लॉयड नहीं है 2 की जगह 3 क्रोमोसोम है किसी सेल में तो दैट इज ट्राइसोम। If 4 copies of same chromosome then that condition is tetrasome. Then tetrasomy of autosome is not known in humans. Tetrasomy of 6 chromosome अगर 4x है तो that sometimes observed. ठीक है, अगर less than 46 45 अगर है तो दैट इज मोनोसोमी। एक क्रोमोसोम कम है तो उसे कहते हैं मोनोसोमी। अगर 3 क्रोमोसोम है सेम 3 क्रोमोसोम एक सेल में दैट इज ट्राइसोमी। 4 कॉपीज है सेम क्रोमोसोम के टेट्रासोमी। अब टेट्रासोमी ऑटोसोम्स में नहीं होती है ह्यूमंस में, बट टेट्रासोमी ऑफ 6 क्रोमोसोम समटाइम्स ऑब्जर्व। देन अनदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटी इज पॉलीप्लॉइडी। The number of chromosomes in a somatic cell increase by 1 or 2 cells. Haploid जो सेल होता है तो that is increased by 1 or 2 set. Haploid is complete set has 22 autosomes and 1 pair of sex chromosomes. Haploid is complete set of 22 autosomes and 1 sex chromosome. All human gametes are haploid. Somatic cells has 2 haploid sets that is diploid. If 3 haploid sets are present, somatic cell में somatic cell कैसी होती है diploid. But if 3 haploid sets are present, that condition is called diploid. 4 haploid sets, then that condition is tetraploid. ठीक है, ह्यूमन का हैप्लॉइड हो गया, सोमैटिक सेल डिप्लॉइड होती है। बट अगर 3 सेट्स होते हैं हैप्लॉइड के दैट कंडीशन इज ट्रिप्लॉइड। 4 सेट हो गए हैप्लॉइड के दैट कंडीशन इज टेट्राप्लॉइड। ट्राइप्लॉइडी 69, टेट्राप्लॉइडी 92 अननोन इन ह्यूमंस। And if occurs that results in spontaneous abortion. ट्रिप्लॉइडी या टेट्राप्लॉइडी अगर होता है तो दैट रिजल्ट्स इन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। कंडीशन देखते कौन सी होती है। अब ये क्यों होता है, ये जो
क्रोमोसोम की एब्नॉर्मलिटी नंबर की एब्नॉर्मलिटी क्यों होती है, ऐसा क्यों नहीं होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सोमेटिक में ऐसा नॉर्मल ये जो हो रहा है। इसके अलावा ये जो टेट्राप्लॉइडी और जो हमें पॉलीप्लॉइडी दिख रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, इट अकर्स ड्यूरिंग द मायोसिस. It occurs due to the disjunction of non-disjunction of meiosis. Meiosis 1 में भी हो सकता है, meiosis 2 में भी हो सकता है. ठीक है, तो meiosis नॉर्मल गमेटोजेनेसिस में क्या होगा? नॉर्मल में आपको पता है. ठीक है, यहाँ पे पेयर है क्रोमोसोम की, ये सेपरेट हुई है डॉटर सेल्स. देन यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड 4 में सेपरेट हुआ है. अगर ये सेपरेशन में इधर 1 में या 2 में ये सेपरेशन में अगर डिफेक्ट होता है दैट रिजल्ट इन पॉलीप्लॉइड. ठीक है, अगर यहाँ पे देखो मायोसिस 1 में अगर डिफेक्ट हुआ है, सेपरेशन नहीं हुआ है, तो दोनों इस सेल में कुछ भी नहीं जाएगा, एक भी क्रोमोसोम नहीं जाएगा, यहाँ पे दोनों चले जाएंगे. फिर इसका जब सेपरेशन होगा तो सिस्टर क्रोमैटिड्स में भी डिफेक्ट दिखेगा. अगर मेयोसिस 1 नॉर्मल है बट मेयोसिस 2 में डिफेक्ट है, तो अगेन यहाँ पे सेपरेशन नॉर्मल हुआ है, यहाँ पे सेपरेशन अगेन देयर इज अ डिफेक्ट, देयर इज अ नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग द मेयोसिस 2. ठीक है. So during spermatogenesis or oogenesis, abnormal gametes are formed. Failure of homologous pair of chromosome to separate is non-disjunction. It may occur in meiosis 1 or it may occur in meiosis 2. The causes of non-disjunction is advancing maternal age, radiation, delay fertilization after ovulation, or maybe genetic. ठीक है, तो causes क्या हो गए? Advancing maternal age, radiation, delay fertilization after ovulation, maybe genetic. Conditions देखेंगे अब. Commonly observed in trisomy 21, trisomy 18, trisomy 13. जो 30 नंबर का क्रोमोसोम होता है वहाँ पे 3 आपको दिखेंगे, 3 क्रोमोसोम्स दिखेंगे. यहाँ पे 20 नंबर का जो है वहाँ पे, और यहाँ पे 18 नंबर का जो है वहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स दिखेंगे. Other than this, other trisomies and monosomies results in spontaneous abortion. ठीक है, तो examples of this numerical abnormalities: trisomy 21, trisomy 18 and trisomy 30. Other trisomies and monosomies results in spontaneous abortion. तो ये जो 3 ट्राइसोमीज है, डाउन सिंड्रोम, पटाउन सिंड्रोम एंड एडवर्स सिंड्रोम, इस पे आपको शॉर्ट नोट आएगा. ठीक है, पहला ट्राइसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम. इट अकर्स 1 in 700 birth. It increases with advancing maternal age. At the age of 45 years, the incidence is as high as 1 in 60. Males more affected than females. ठीक है, तो causes advancing maternal age seen is 1 in 700 birth and males are commonly more affected. डाउन सिंड्रोम में क्लिनिकल सिम्टम्स क्या दिखते हैं? मेंटल रिटार्डेशन, फ्लैट ऑक्सीपुट एंड नोज, मीडियल एपिकैंथस, लो सेट ईयर्स, हाई आर्च पैलेट, प्रोट्रूडिंग टंग, सीवियस डिफेक्ट, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स, एंड सिंगल क्रीज. That is called सीमाइन क्रीज. जो पाम पे होती है that is single क्रीज दिखती है, that is called सीमाइन क्रीज. ठीक है, ये भी ऐसे दिखेगा डाउन सिंड्रोम का. फ्लैट ऑक्सीपुट, मेंटली रिटार्डेड, लो सेट ईयर, फ्लैट नोज, एपिकैंथल फोल्ड, प्रोट्रूडिंग टंग. This is karyotype.
ठीक है, ये कैरियोटाइप किया है हमने क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए। एक माइक्रो फोटोग्राफ होती है क्रोमोसोम की, जिसे हम कहते हैं कैरियोटाइप। वो जो 21 नंबर का ऑटोसोम है यहाँ पे, इसमें हमें 3 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, बाकी जगह 2 दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें 21 नंबर पे 3 दिख रहे हैं। दैट इज ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम। तो इसका हम कैसे लिखेंगे? क्रोमोसोम नंबर 47 X 21 नंबर दिख रहा है डिफेक्ट, 47 X 21। ठीक है, कैरियोटाइप इज द प्रोसेस बाय विच माइक्रो फोटोग्राफ क्रोमोसोम्स आर टेकन in order to determine chromosome complement of an individual, including number and any abnormality. ठीक है, तो कैरियोटाइपिंग इज द प्रोसेस बाय विच photographs of chromosomes under the microscope are taken in order to determine the chromosome complement of an individual, including number and any abnormality. ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है? एक तो ट्राइसोमी 21 मोस्ट कॉमन 95% केसेस में ट्राइसोमी 21 की वजह से डाउन सिंड्रोम होगा। जीनोटाइप कैसे होगा? 47 XX और 47 XY and occurs due to non-disjunction in meiosis 1. It occurs due to the non-disjunction in meiosis 1. Also can be seen in Robertsonian translocation. ये देखेंगे हम अगली क्लास में, देखेंगे स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज जो होती है क्रोमोसोम्स की, उसमें देखेंगे रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन एंड इन मोसाइसिज्म। चिल्ड्रन विद मोसाइसिज्म में क्या होता है? 2 सेल लाइंस होती है, एक नॉर्मल लाइन होगी, एक ट्राइसोमिक। एंड ये जो चाइल्ड होता है इस टाइप का जिनमें मैनिफेस्टेशन होता है, दे आर लेस सेवरली अफेक्ट। 3 रीजन है, एक तो ट्राइसोमी 21, देन रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन एंड मोसाइसिज्म। लाइफ स्पैन वैरीज फ्रॉम फ्यू वीक्स टू डिकेड्स, mean age is 60 years, and they go beyond, they suffer from Alzheimer's disease. ठीक है, अल्जाइमर डिजीज में ग्रेजुअल मेमोरी लॉस होता है, डिमेंशिया होता है। ओके, काउंसलिंग में इम्यूनोसेंटेसिस करते हैं और क्रोमोसोमल एनालिसिस। ठीक है, अगर एडवांसिंग है, मदर का एज अगर ज़्यादा है, तो जब प्रीनेटल चेकअप होता है उसमें इम्यूनोसेंटेसिस करते हैं, क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं। इसमें 3 बायोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता है। बायोलॉजिकल मार्कर्स कौन से हैं? अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्ट्राडियोल एंड कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। प्रेजेंट इन मैटरनल सीरम आर टेस्टेड एट 60 वीक ऑफ जेस्टेशन। इसमें हमें क्या दिखेगा? अल्फा फीटोप्रोटीन और एस्ट्राडियोल रिड्यूस होता है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। ओके, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जब पहला चाइल्ड अगर डाउन बेबी है, तो जब सेकंड चाइल्ड के वक्त जो काउंसलिंग होती है, या फिर मदर का एज ज़्यादा है, मोर देन 35 45 इयर्स इस टाइप से है, तो प्रीनेटल जो चेकअप होता है उसमें डाउन सिंड्रोम रूल आउट करने के लिए इम्यूनोसेंटेसिस करते हैं, क्रोमोसोमल एनालिसिस होती है। इसमें ये जो 3 मार्कर्स होते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्ट्राडियोल एंड कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो मैटरनल सीरम में होता है, उसको टेस्ट करते हैं एट 60th वीक ऑफ जेस्टेशन। तो उसमें हमें क्या मिलता है? अगर अल्फा फीटोप्रोटीन और एस्ट्राडियोल क्या होगा? रिड्यूस होगा, और कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है। Then Patayus syndrome. Patayus syndrome is trisomy 13. ठीक है, जैसे हमने ट्राइसोमी 21 देखा था, वैसे ट्राइसोमी 13 नंबर का जो ऑटोसोम होता है, वहाँ पे 3 दिखेंगे हमें। This again lead to abortion, spontaneous abortion. Incidence is 1 in 5,000. Most die within a month.
and no one survives more than 3 to 4 months. Clinical feature: physically and mentally retarded, small skull and eyes, cleft lip or triple palate, extra finger or malformed thumb, malformation of CVS, CNS and excretory system. Physically mentally retarded, small skull and eyes, cleft lip, cleft palate होगी, extra finger or malformed thumb, malformation of CVS, CNS and excretory system. ठीक है. इस टाइप से देखिएगा. न्यूबॉर्न पटाई सिंड्रोम में अगेन इसका कैरियोटाइप 13 नंबर पे 3 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं. ठीक है, तो इसका कैरियोटाइप है 47 XY. अब ये मेल है XY, अगर फीमेल होगी XX और 13 नंबर का क्रोमोसोम ब्रैकेट में 13. जीनोटाइप ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 13. अगेन मोसैसिज्म एंड ट्रांसलोकेशन. इस कंडीशन में कॉमन कॉजेस ट्राइसोमी 13, मोसैसिज्म एंड ट्रांसलोकेशन रेयर होते हैं. काउंसलिंग इंसिडेंस इंक्रीजेस विद एडवांस मैटरनल एज. प्रीनेटल चेकअप में ये काउंसलिंग सारा एडवाइस दिया जाता है कि रिकरेंस के चांसेस आर लेस, but incidence increases with advanced maternal age. ठीक है. Then trisomy 13, that is adverse syndrome. It again result in spontaneous abortion. Incidence 1 in 6,500 live birth. Early death before 6 months is common. Long-term survival may be there. Then genotype again trisomy 80. Trisomy of chromosome 80. ठीक है. Clinical feature: retarded growth and development, hypertonia, prominent large occiput, low set, malformed ear, small chin, VSD and PDA common. Abnormal insertion of tendons of fingers. So fingers are held in a typical way, like this. Okay, this is adverse syndrome. Prominent occiput, small chin. यहाँ पे ये due to the malformed tendon insertion over the finger. This child hold the finger in this typical way. अगेन कैरियोटाइप में 18 नंबर 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं. तो ट्राइसोमीज में these are like XXY, XYY और ट्रिपल X. ठीक है. एंड मोनोजोमीज लाइक एक क्रोमोसोम कम होगा तो X और 0 लिखेंगे X. तो मोनोजोमी का एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम. मोसैसिज्म दोनों सेल लाइन है, नॉर्मल भी और डिफेक्टिव भी. और अगर दोनों नॉर्मल है तो मेल का भी है, फीमेल का, जो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं उनमें ये मोसैसिज्म है. ठीक है, मेल और फीमेल दोनों टाइप के सेल लाइन्स होती है उसमें. Turner syndrome, example of monozomy. Here, common cause of spontaneous abortion. 20% of spontaneous aborted fetus have 45XO genotype. Incidence of live born infant is 1 in 5,000 or 10,000. ठीक है, इसमें भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होगा और जो अबॉर्टेड फीटस होते हैं उनमें जीनोटाइप दिखेगा 45XO.
एक्सो है मतलब सिर्फ एक्स है, तो क्या होगी, फीमेल होगी ये। अफेक्टेड फीमेल आर ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस और स्लाइटली रिटार्डेड। क्या क्या दिखेगा, शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, वेब नेक होगी, लो पोस्टीरियर हेयरलाइन, क्यूबाइटस वैल्गस, ब्रॉड चेस्ट विथ वाइडली स्पेस निप्पल्स। ठीक है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल होगी, अफेक्टेड फीमेल, मे बी नॉर्मल और स्लाइटली रिटार्डेड, शॉर्ट स्ट्रेचर, वेब नेक, लो पोस्टीरियर हेयरलाइन, क्यूबाइटस वैल्गस, ब्रॉड चेस्ट विथ वाइडली स्पेस। स्पेसिफिक डिफेक्ट्स, अरिथमेटिक स्किल, रीडिंग मैप्स एंड ड्राइंग डायग्राम्स। इसमें डिफेक्ट्स होगा अरिथमेटिक स्किल में, मैप रीडिंग में, डायग्राम्स ड्रॉ करने में। may have ventricular septal defect or coaction of aorta. Abnormalities of urinary system, sterile female with poor menstruation and breast development. ठीक है, स्पेसिफिक डिफेक्ट, अरिथमेटिक स्किल, मैप रीडिंग, डायग्राम्स ड्राइंग, ventricular septal defect, coaction of aorta, abnormalities of urinary system, sterile females with poor menstruation and breast development. ठीक है, तो दिस इज 9-year-old child with stunted growth and web neck. See, web neck है, skin of the neck, redundant skin of neck. Here again, low set ear, laterally placed nipple. और इसमें ये जो केस है, इसमें lymphadenema था of lower. Puff feet. Here karyotyping में सिंगल एक्स है, karyotyping लिखेंगे हम 45X0. जीनोटाइप मोनोजोमी एक्स, मोसैसिज्म में एक मोनोजोम टर्नर वाला सेल लाइन होगा, एक नॉर्मल सेल लाइन होगा। आइसोक्रोमोसोम की वजह से भी हो सकता है। अब ये हम सारी नेक्स्ट क्लासेस पे देखेंगे। नेक्स्ट में हम जो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज देखेंगे, इसमें हम देखेंगे आइसोक्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होता है, एंड सेक्स क्रोमैटिन एग्जामिनेशन इज निगेटिव। बार बॉडी के बारे में पता होगा आप लोगों को। बार बॉडी कल की क्लास में पूछा, बार बॉडी क्या होता है। क्या होता है हमें पता पाएगा क्या? सेक्स क्रोमैटिन एग्जामिनेशन निगेटिव, मतलब यहाँ पे बार बॉडी नहीं मिलती है। यूजुअली मेल्स में एक बार बॉडी होती है, इसमें नहीं मिलती है। दैट मींस सेक्स क्रोमैटिन एग्जामिनेशन इज निगेटिव। ठीक है, अब ये बार बॉडी क्या होती है, कैसे उसका सेक्स क्रोमैटिन एग्जामिनेशन में कैसे दिखती है। वेरी गुड कह रहे हो। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल्स में, यस, इनएक्टिव जो एक्स क्रोमोसोम होगा दैट फॉर्म ऑफ बार बॉडी। तो नॉर्मल फीमेल्स में 2 एक्स होते हैं, तो एक बार बॉडी मिलती है इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम की वजह से। इसमें एक सिंगल एक्स है, तो यहाँ पे बार बॉडी प्रेजेंट नहीं है। जो टर्नर वाली फीमेल होती है उसमें बार बॉडी नहीं होती है, तो दैट सेक्स क्रोमैटिन एग्जामिनेशन हियर इज नेगेटिव। काउंसलिंग में एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी एट एडोलेसेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। देन ट्रिपल एक्स जो फीमेल्स होती है, नॉर्मल 2 होगा, एक कम है तो टर्नर है, और अगर 3 एक्स है अगर फीमेल में, सो इट अकर्स, इट इज वेरी रेयर, दैट इज 0.1% फीमेल में होता है। इसमें फिनोटिपिकली नॉर्मल होगी, IQ क्लोज टू नॉर्मल, रिप्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, इस टाइप की जो फीमेल होती है फिनोटिपिकली नॉर्मल होती है, IQ भी नॉर्मल, रिप्रोडक्टिव लाइफ। देन
XXY Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome Y है मतलब मेल में होगा 1 in 1000 न्यूबॉर्न मेल्स में दिखता है Klinefelter syndrome. क्लिनिकली क्या क्या होगा? इंडिविजुअल इज मेल ऑब्वियसली, डिटेक्टेड ओनली एट एडोलेसेंस एज. ठीक है, डिटेक्टेड ओनली एट एडोलेसेंस एज. देन इनफर्टाइल, इट लुक्स नॉर्मल, टॉल बट मेंटली रिटार्डेड. ठीक है, इंडिविजुअल कैसे होगा? मेल है, एडोलेसेंस एज में ये डिसीज सिंड्रोम का डिटेक्शन होगा. दैट मेल विल बी इनफर्टाइल, लुक्स नॉर्मल, टॉल बट मेंटली रिटार्डेड. स्मॉल टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नॉट फुल्ली डेवलप्ड, gynecomastia may be seen. Then facial hair growth scanty. ठीक है, क्या क्या देखिए क्लिनिकल फीचर? Infertile, looks normal, tall but mentally retarded. Small testis, secondary sexual character not fully developed, gynecomastia may be seen, facial hair growth scanty. ठीक है, ये है Klinefelter मेल. इसका जीनोटाइप इज 47 XXY. क्या क्या दिख रहा है? टॉलर देन एवरेज हाइट, रिड्यूस फेशियल हेयर, रिड्यूस बॉडी हेयर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, gynecomastia, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रेजाइल बोन, फेमिनाइन फैट डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक्स है एक्स्ट्रा इसमें, फेमिनाइन फैट डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल टेस्टिकुलर एट्रोफी. ठीक है, एंड मेंटली रिटार्डेड. ये सेक्स क्रोमोसोम 2 X है, एक Y है. काउंसलिंग एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, treatment with testosterone will help in the development of secondary sexual characters. ठीक है, at the age of puberty, treatment with testosterone will help in development of secondary sexual characters. Then XY, इसमें 2 Y है. Incidence is 1 in 1000 newborns. Clinical feature phenotypically normal but tall. Slight mental retardation. अब abnormality यहाँ क्या है? Shows emotional immaturity and impulsive behavior but not criminals. ठीक है, phenotypically normal but tall, slight mental retardation, emotional immaturity and impulsive behavior but they are not always criminals. Genotype again 47 XYY. The additional Y chromosome is due to non-disjunction of meiosis II during spermatogenesis. This occurs due to non-disjunction of meiosis II during spermatogenesis. ठीक है, then अगली क्लास में हम पढ़ेंगे disorders of chromosome structure. ठीक है. Shall I stop here? Okay. So, thank you. See you in the next class. Bye.